Welcome in trigonometry part 37. In this part we solve two more problems based on trigonometrical equation. Let us see first problem today. Take solve. Eight 10 square x by 2. 8 10 square x by 2 equal to 1 plus sec x. 1 plus sec x. This is your problem. Question is solve. Let us solve it. See, given equation is 8 10 square x by 2 can be written as sin square x by 2 by cos square x by 2 equal to 1 plus sec x can be written as 1 by cos x. So this side it is already changed in term of cos. So this side also let us change in term of cos. One is sin. So sin square x equal to half 1 minus cos 2x. Have you read this? Sin square x equal to half 1 minus cos 2x. This is our formula. So sin square x by 2 will be your half 1 minus cos x. Sin square x equal to half 1 minus cos 2x. So sin square x by 2 equal to half 1 minus, it will becomes cos x. इधर x को x by 2 कर दीजिएगा, उधर 2x को x. उसी तरह से cos square x by 2 होता है half 1 plus cos x. ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते ताकि cos के टर्म में आ जाएगा पूरा. This implies 8 sin square x can be written as half 1 minus cos x, and this is half 1 plus cos x. Half cancel. 1 plus 1 by cos x. Okay. Now this can be written as 1 plus cos x by cos x. Okay. Take cross multiplication. 8 1 minus cos x. This will be multiplied by cos x, and this side 1 plus cos x into 1 plus cos x. This will be by taking cross multiplication. Let us simplify it. 8 it is cos x minus cos square x. Use a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. Okay. So this can be written as 8 cos x minus 8 cos square x equal to 1 plus cos square x 2 cos x. Try to make it a quadratic equation. इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का आप कोशिश कीजिए. देखिए 8 और ये एक साइड ले जाइए, 9 cos square x. ओके. और ये 2 cos x माइनस 8 cos x माइनस 6 cos x and plus 1 equal to 0. It's not it. So is a quadratic equation of cos x. Okay, is a quadratic equation of cos x. So can you find cos x from here? Minus b, minus minus plus, plus minus root under
बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 1 बाय 2a, ओके. cos x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. Okay, so this part becomes 0, so it is coming 6 by 18 means 1 by 3. 1 by 3 is there. Okay, our answer is correct. Cos x is 1 by 3. So here also the same problem we faced in our previous problem. Cos x equal to 1 by 3. Now you have to choose an angle alpha such that cos alpha is 1 by 3, but there is no such standard angle whose cos is 1 by 3. cos का किसी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू तो 1 by 3 नहीं आएगा, 1 by 2 आता है, 1 by 2 root 3 by 2. For this we write equal to cos alpha, say. Means in place of 1 by 3 we have written cos alpha, means we have taken alpha is an angle whose cos is 1 by 3. It is not a standard angle, maybe any other angle. So now cos theta equal to cos alpha, theta equal to 2n pi plus minus alpha. So this will be your answer, where alpha is, where cos alpha is 1 by 3 and n is any integer. N is any integer. In this way we can write the solution. Let us solve one more problem. Few problems yourself you will try from your book. This last one is very important problems, you must see it in proper way. Question है, solve cos theta into cos 2 theta into cos 3 theta equal to 1 by 4. Yes, this is your problem. Last, but it is the most important and very good question. This is, you will find in your textbook also this one. Solve cos theta into cos 2 theta into cos 3 theta equal to 1 by 4. Okay, let us see. ये अगर इधर जीरो रहता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक एक को जीरो करते और आंसर कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इधर 1 by 4 है. गिवन, आप ऐसा कीजिए, cos थीटा cos 3 थीटा को एक साथ रख लीजिए, cos थीटा और cos 3 थीटा को एक साथ रख लीजिए, इनटू cos 2 थीटा कर लीजिए. ऐसा क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो उसमें cos 2 थीटा आएगा, तो फिर कॉमन वगैरह ले सकेंगे. अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम. इससे ये हुआ कि ये आपका 2 cos a इंटू cos b फॉर्म में आ गया. 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है cos a. 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है 2 cos a इंटू cos b. ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. सो 2 cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस b, ये हुआ a प्लस b,
प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए माइनस बी, समझे। ये हाफ है आगे में, ये जो नीचे हाफ है वो रहेगा ना, इसको ऐसा कर लीजिए, इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/4। समझ गए बात। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, उसी फॉर्मूला से ये हाफ रहेगा और ये हो जाएगा आपका कॉस 3 थीटा प्लस कॉस माइनस 2 थीटा। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 2 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/4। ओके, ये हाफ को उधर ले जाइए ना, 1/4, 2 ऊपर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये इंटू होगा, प्लस cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा, और इसको 1/2 कर लीजिए, ये 2 को उधर ले जाइए। बोलिए, बात समझ में आया? ठीक है। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो फिर वो 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा/2 हो जाएगा, फिर थीटा/2 हो जाएगा, 3 थीटा माइनस 2 थीटा। इसको थोड़ा तोड़िए तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा को। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकेंगे? कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा हाफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये बात समझ में आए? कॉस स्क्वायर थीटा, आवर फॉर्मूला इज हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो कॉस स्क्वायर 2 थीटा विल बी हाफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा, थीटा के जगह पर 2 थीटा हो जाएगा। जरा इसको लिखा जाए तो फायदा क्या होगा इससे, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा अगर इसको बनाए 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा। इससे कोई फायदा हुआ नहीं। देखिए एक मिस्टेक यहाँ रह गया, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। जरा सा यहाँ ध्यान से देखिए, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये ना। तो 2 ए है ए, ये है बी, तो कॉस ए प्लस बी, ये देखिए ये 3 होगा। समझ गए बात? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये थीटा माइनस 3 थीटा। समझे? तो ये थीटा प्लस 3 थीटा, ये हो जाएगा आपका 4 थीटा। वही हम कह रहे हैं, तो हाफ एंगल आ जा रहा है, फिर उसको तोड़ने पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो कहीं कुछ मिस्टेक, इस तरह से मिस्टेक हो जाता है। आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, कहीं नहीं आ रहा तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा आगे से। ये 4 थीटा हो जाएगा, तो ये 4 थीटा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 थीटा आएगा और 4 थीटा कॉमन होगा। ठीक है, इसी से पता चला कि हाँ कुछ तो मिस्टेक है। तो कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1/2। बोलिए, बात समझ में है? अब LCM 2, here it will be 2 cos 4 theta into cos 2 theta plus ये this 2 will go to that side, ये 2 जो LCM है यहाँ चला जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा। तो आप cos 4 थीटा लिखिए, ये नीचे वाला 2 जाके 1 हो गया और ये जो 1 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, पूरा 0 ही हो जाएगा। या ऐसे देखिए ना, ये हाफ होगा ना, हाफ उधर जाएगा माइनस हो जाएगा।
ठीक है ना। और फिर आप cos 4 थीटा, पहले आप एलसीएम ले लेंगे, ये पहले आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा और ऊपर 1 प्लस cos 4 थीटा, और ये 2 उधर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 उधर जाके का माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं। या फिर ठीक है, तो ये हाफ पूरा में इंटू था ना, तो उधर चला गया, हाफ cos 4 थीटा हाफ 1 प्लस cos 4 थीटा हाफ 2 cos थीटा। ओके, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इधर रफ करते हैं इसको। अब देखिए, इसमें आप क्या कीजिए, cos 4 थीटा कॉमन ले लीजिए, cos 4 theta can be taken as common. So what will come in bracket? 2 cos 2 theta. 2 cos 2 theta. और यहाँ ये पूरा कॉमन हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये x नहीं, थीटा है तो थीटा ही रखें। देखिए, cos 4 थीटा को कॉमन ले लिए, 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, no problem. So this implies cos 4 theta equal to 0 or cos 2 theta equal to minus 1/2 है क्या? एक बार इसको 0 करेंगे, cos 4 थीटा 0 होगा, और एक बार इसको 0 करेंगे तो minus 1/2 होगा। So cos 4 theta equal to 0 और cos 2 थीटा इक्वल टू, इसको cos कितना डिग्री लिख सकते हैं? cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो cos 120 डिग्री होगा माइनस हाफ। तो दिस कैन बी रिटन एज cos 120 डिग्री। 120 डिग्री मीन्स 2π/3। सो फ्रॉम हियर cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, 2n plus 1 π/2 and or cos theta equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi plus minus alpha means 2π/3। ये हो जाएगा cos theta equal to cos alpha टाइप का, तो theta equal to 2n pi plus minus alpha, और ये cos theta equal to 0, then theta equal to 2n plus 1 π/2। ठीक है, अब यहां से आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ थीटा, यहां से थीटा का वैल्यू होगा 2n प्लस 1 π/2 है, ये 4 चला जाएगा, π/8, और यहां से थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, n पाई प्लस माइनस ये 2 भी कट जाएगा, π/3 ऐसा, where n is any integer, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं त्रिकोणोमेट्रिकल इक्वेशंस। इसका आंसर देख लें आया है या नहीं। 2n प्लस 1 π/8, सेकेंड आंसर है n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, आंसर ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व problems based on trigonometrical equations. So I have solved I think 6-7 problems
So you should try yourself at least 5-6 more problems from your book, and this chapter is over. Trigonometrical equation. One more chapter is there, that is called inverse circular function. We will read in the next video, part 38, inverse trigonometrical function. In this video this much. Thank you for watching.